Welcome to all of you. This is my fourth video related to class 11 entrepreneurship subject. Student, in the previous video, we have learned about the two main functions of an entrepreneur, that is entrepreneurial function and promotional function. We have learned in entrepreneurial function three sub function, that is innovation, risk taking, organization, building. Now, and in the promotional function, we have learned four functions of an entrepreneur, that is investigation of an idea, detailed investigation, assembling the requirement, and financing the proposition. That is two function that we have already learned in our previous video. Now student, we are moving the third function of an entrepreneur in our chapter number 1, that is entrepreneurship concepts and function. I am already telling you that there are there are eight managerial functions of an entrepreneur. First one is planning, second one is organizing, third one is staffing, fourth one is directing, next leadership, next one is motivation, next coordination, and the last one is controlling. These are the eight managerial functions of an entrepreneur. Student, if you are a commerce student, then you will see that these are the chapter of class 12. These are the eight chapters of class 12 business studies book. These are total eight chapters. Just like chapter 1 is planning, chapter 2 is organizing, chapter 3 is staffing, chapter 4 is directing. So these are eight chapter in this in your class 12 business studies. Here we are studying just introduction, just a brief knowledge about these functions of an entrepreneur. These are the functions that are ultimately done by an entrepreneur. Is it clear? First one is planning. The first main function of an entrepreneur is planning. Planning is related to do things in advance. That means यदि suppose कीजिए हमें कुछ भी हम करना चाह रहे हैं, यदि एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं, यदि सपोज कीजिए आपको एग्जाम में 80 अबाउ परसेंट लेके आने हैं, ये आपका टारगेट है कि हाँ हमको 80 अबाउ परसेंटेज ही चाहिए, तो दैट मीन्स ऐसा नहीं कि जस्ट आपने सोचा या आपके माइंड में आया और है ना आपको एग्जाम में 80 प्लस परसेंटेज आ जाएंगे. नो, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. और प्लानिंग दैट मीन्स एडवांस, दैट मीन्स हो सकता है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एकेडमिक ईयर आपने अपना टाइम टेबल बना लिया, आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं, आप जो सब्जेक्ट आपके वीक है उनको ज्यादा आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा उसको और अच्छा से स्ट्रांगली कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, कोई भी डाउट है उसको सोल्व कर रहे हैं. तो प्लानिंग दैट मीन्स एडवांस में डिसाइड करना, ताकि हमने जो डिजायर गोल है, दैट मीन्स जो हमारा डिजायर गोल है 80 प्लस परसेंटेज, वो हम अचीव कर सके. तो कोई भी बिजनेस में हम कोई भी बिजनेस में वर्क करेंगे, पहले हमें उसके लिए प्लानिंग करनी होगी. दैट मीन्स इस ईयर हमें जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी 10,000 प्लस यूनिट सेल करनी है, तो डेफिनेटली हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. उसके लिए हो सकता है हमें प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को थोड़ा सा लो करना पड़े, हो सकता है हमें जो प्रमोशनल मेथड्स है, एडवर्टीजमेंट, मीडिया, उनको इंक्रीज करना पड़े, हो सकता है हमें वेरियस डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़े कस्टमर्स को. तो हमें पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी. और ये प्लानिंग जो करने का टास्क है वो किसका है? एक एंटरप्रेन्योर का है. तो यहाँ पे बोला गया इट इज अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. It helps in determining the course of actions to be followed to achieve various entrepreneurial objectives. Planning is concerned with the mental state of the entrepreneur. It is decision making in advance. जो प्लानिंग के लिए जो मेन लाइन है, यहाँ पे जो लाइन यूज हो रही है वो है इट इज डिसीजन मेकिंग इन एडवांस, what to do, when to do, how to do, and who will do a particular task.
हमें कैसे करना है, किस तरीके से हमें सेल इंक्रीज करनी है, उसके लिए क्या क्या एफर्ट करना पड़ेगा, इस टास्क को करने के लिए कौन पर्सन मेरे लिए हेल्पफुल होगा, कौन पर्सन को मैं क्या वर्क असाइन कर सकता हूँ। तो दैट इज प्लानिंग। और प्लानिंग हमें कब करनी होती है, वर्क को एग्जीक्यूट करते टाइम नहीं, एडवांस में हमें उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। जो सेकंड फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। दैट मीन्स यदि हमने कोई भी वर्क करना चाह रहे हैं, कोई भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें उन सबको, जो भी हमारा वर्क है उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो डिफरेंट डिफरेंट हमें सर्विसेज चाहिए, पर्सन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तभी हम उससे क्या कर सकते हैं, उस वर्क को कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है, I am reading it here. Every business enterprises need the service of a number of persons to look after its different aspects. The entrepreneur set up the objective or goals to be achieved by its personnel. The function of organizing is to arrange, guide, coordinate, direct, and control the activities of factors of production. इज इट क्लियर? तो जो वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, अदर रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है जो मेन है, तो उनको हम जब गाइड करेंगे, और जो वो क्या वर्क कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके वर्क को डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना, यदि कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो चेंजेस के रीजंस फाइंड आउट करना, ये सब जो टास्क है वो है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें जो थर्ड है, थर्ड जो मेन फंक्शन है दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज सिंपली रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्क, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है लार्ज लेवल पे है, तो वो वर्क एक सिंगल पर्सन के द्वारा कंप्लीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। देन इन दैट केस ही विल टेक हेल्प ऑफ सम अदर person that are human resources of that particular organization. If an organization and entrepreneur hire various employees according to his her business requirement, he may hire some watchman, some sweeper, or he may hire some managing director, directors, managers, chartered accountant. All are depend according to the requirement of our business. So basically staffing is completely, this function is related to human resource of that organization. It is related to planning, that means how many human resources are required, their appointment, their recruitment, their selection, their training, all are related to human resources. I am reading it here. The function involves making appointments for the position created by organizational process. It is concerned with the human resources of an enterprise. It consists of human resource, manpower planning, recruitment, उनको recruit करना, that means उनको select करना, selection and placement of manpower, human resource development, their promotion, transfer, appraisal, and determination of employee remuneration. That means A to Z tasks related to an employee of an organization are doing or planning in staffing, and this is also the main function of an एंटरप्रेन्योर। इज इट क्लियर? तो एम्प्लॉय डिसाइड करेगा कि किसको अपॉइंट कर, एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा किसको अपॉइंट करना है, क्या उसको सैलरी देना है, क्या 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 एनुअल इंक्रीमेंट प्रोवाइड करना है। तो ऑल आर टास्क, all are work done by an entrepreneur. Next is directing. Next function is directing. That means direction provide करना। entrepreneur वर्क नहीं कर सकता है, लेकिन जो दूसरे पर्सन है उनके वर्क को चेक कर सकता है, उनसे अपने अकॉर्डिंग वर्क करवा सकता है, और उनसे जो चेक कर सकता है, श्योर कर सकता है कि जो वर्क उन्होंने करा है वो कंप्लीट करा है, नहीं किया है, कोई वेरिएशन। तो इस तरीके जो टास्क है वो किसके अंदर होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर। It is concerned with carrying out the desired plans. It initiates, organized and planned action
ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड एक्शन, जो हमने प्लानिंग की है वो फंक्शन से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, हम जो डिजायर, जो हमारा गोल है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये सब हम डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर डिसाइड करते हैं। And ensures effective performance by subordinates towards the accomplishment of group activities. Subordinate, superior, these are two terms. Superior are the senior person and subordinate are the employee that work under any superior. तो अपने अकॉर्डिंग जो मैनेजर है वो सबॉर्डिनेट्स को टास्क दे सकते हैं, उन्होंने जो वर्क किया उनके वर्क को रीचेक कर सकते हैं। तो ऑल आर वर्क इज डन इन डायरेक्टिंग फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज लीडरशिप। दैट मीन्स लीडरशिप सिंपली मीनिंग है लीडर। आप एम्प्लॉय से काम तो करवाएंगे तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई लीडर होगा जो उनको गाइड कर सकता है, जो उनके वर्क को चेक कर सकता है, जो उनको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो ये जो उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है उस वर्क के लिए। तो पर्टिकुलर पर्सन भी एक कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। और ये इसका जो फंक्शन है लीडरशिप, वो इसका ये एक फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर का। तो it is the process by which an entrepreneur imaginatively direct, guide and influence the work of others in choosing and attaining specified goals. Specified goals, that means जो goal जो हमने decide किए हैं, जो हमने decide किए हैं कि हमें ये गोल अचीव करने हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 10,000 यूनिट सेल, तो दैट इज अवर डिजायर गोल। तो हम उसके लिए उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, गाइड, इन्फ्लुएंस by meditating between the individual and organization in such a manner that both will get the maximum satisfaction. Is it clear? Next one is communication. Communication is also main function of an entrepreneur. Is it clear? जस्ट लाइक यदि सपोज कीजिए एक टॉप लेवल एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसको कोई भी टास्क करवाना है। सपोज कीजिए जो हमारे 10,000 यूनिट्स हमने डिसाइड किए, हमने प्लान किया कि ये यूनिट सेल करना है, तो एक एंटरप्रेन्योर के डिसाइड करने से तो नहीं होगा, उसे वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको? मैनेजर्स कम्युनिकेट करेंगे उससे लोअर लेवल एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज जो कम्युनिकेट करेंगे वर्कर्स को, वर्कर्स क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो 10,000 यूनिट्स प्रिपेयर करेंगे। सपोज कीजिए वर्कर्स को एक्स्ट्रा मशीन्स चाहिए, एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, तो अब ऐसा तो नहीं कि एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड कर लिया 10,000 यूनिट और जो मशीन है उससे सपोज कीजिए कैपेसिटी मशीन की प्रोडक्शन की 8,000 ही है, तो वो 2,000 तो नहीं बना पाएंगे। यदि एक्सेस मशीन्स का यूज करेंगे तो हो सकता है मशीन शॉर्ट रन में डैमेज हो जाए, खराब हो जाए। तो उन्हें भी क्या है, ये सिचुएशन कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। किसको? हायर लेवल अथॉरिटीज को। वो अपने इमीडिएट बॉस को कम्युनिकेट करेंगे, इमीडिएट बॉस मैनेजर को, मैनेजर्स अबाउ सीनियर अथॉरिटी को, सीनियर अथॉरिटी एंटरप्रेन्योर को कम्युनिकेट करेगी, एंड देन आफ्टर वो क्या करेगा, उन मशीन्स के लिए अरेंजमेंट करेगा। तो communication is also a very important task, very important function of an entrepreneur. It constitutes a very important function of the entrepreneur. It is observed to be the most prevalent problem among the entrepreneurs today. It has been established that the entrepreneurs spend 75% to 90% of their working time communicating with others. It refers to the exchange of ideas, feeling, emotions, knowledge, and information between two persons. Nothing happens in management until effective communication takes place. Is it clear? This is included in communication. Is it clear? And it is a main function of an entrepreneur. Next one is motivation. Motivation is a very important function of an entrepreneur. And it's not a physical function, it is a psychological process. सिंपली मीनिंग है, मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ स्टडीज के लिए, आप मुझसे मोटिवेट भी हो सकते हैं और डिजायर्ड रिजल्ट भी ला सकते हैं। तो डेफिनेटली यदि एंटरप्रेन्योर को यदि अपने एम्प्लॉयज से काम करवाना है तो उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा।
मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है कि उनको उनकी जॉब रिस्क हो, उनको रिट्रेंच कर दिया जाए, हटा दिया जाए। पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है कि उन्होंने वर्क अच्छा किया है तो उनको अप्रेजल दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए और जो इंक्रीमेंट्स है वो प्रोवाइड हो। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। दैट मीन्स एक एम्प्लॉयज के माइंड में वो एक साइकोलॉजिकली डेवलप कर देना एक अर्ज की, दैट मीन्स हाँ आपको ये टास्क करना है। यदि मोटिवेशन नहीं मिलेगा एम्प्लॉयज को तो वो टास्क नहीं करेंगे। सपोज कीजिए 10,000 यूनिट बनानी है, उनके लिए ये नहीं क्या है डिसाइड कि आपको पर डे कितनी यूनिट बनानी है, बस उनको बोल दिया 7 to 5 आपको ये ऑफिस आवर्स अटेंड करने हैं, तो हो सकता है वो एक यूनिट ही बना दे। या हो सकता है सपोज कीजिए जो सेल्स पर्सन है वो 10,000 यूनिट्स को सेल करनी है, यदि हम उनको इस तरीके से बोलेंगे कि हाँ आपको जाके सेल करना है, कितनी यूनिट सेल करना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो उसके लिए एफर्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमने उनको मोटिवेट किया कि यदि आप हर यूनिट सेल कर रहे हैं तो हर यूनिट के बाद में आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो डेफिनेटली उस 200 रुपीज का जो मोटिवेशन है उसके लिए वो एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। तो आप मोटिवेशन हो सकता है एम्प्लॉयज की सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, ईगो से रिलेटेड हो सकता है, उनको उनकी पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है। तो इट मे बी इन एनी फॉर्म। इज इट क्लियर? इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. It is the psychological process of creating an urge among the subordinates to do certain things or behave in the desired manner. Is it clear? Is sound motivational. The importance of motivation can be realized from the fact that the performance of worker depend upon his or her ability and motivation. A sound motivational system must be productive, competitive, comprehensive, and flexible. It must consider the psychological, social, safety, ego needs to the worker. यदि आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको कम समझ में आया है तो डोंट बी पैनिक। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम ये जो मोटिवेशन थ्योरीज हैं, जो यहाँ पे वर्ड है सोशल, सेफ्टी, ईगो, इकोनॉमी, हम किस तरीके से एक पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैस्लोज थ्योरी है मोटिवेशन की, मैकलेन थ्योरी मोटिवेशन की गिवन है, वो हम यहाँ पे उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टास्क है एक एंटरप्रेन्योर का है वो है सुपरविजन। सुपरविजन सिंपली जैसे कि आपको वर्ड से समझ में हो रहा है, सुपरविजन दैट मीन्स चेक करना। कि सपोज कीजिए मेरी मदर ने मुझे कोई टास्क दिया है तो मेरे वर्क को सुपरवाइज करेगी, चेक करेगी कि मैंने उसके अकॉर्डिंग वर्क किया है नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, क्या रीजन रहा है। तो उसी तरीके से सपोज कीजिए 10,000 यूनिट्स बनाने का हमारा है प्लान। यदि टारगेट 10,000 का है लेकिन जैसा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हो सकता है हम 5,000 यूनिट बना पाए, हो सकता है 8,000 यूनिट ही बना पाए। तो हमें सुपरवाइज करना है, चेक करना है क्या कि जो हमने वर्क दिया है वो सही कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ डूइंग दैट वर्क, क्या रीजन है हम वो देखेंगे। तो इस बेसिकली सुपरविजन इज रिलेटेड टू चेकिंग और the task of subordinate, checking the work of subordinate that are assigned by their higher level authorities. Is it clear? Supervision refers to the job of overseeing subordinates at work to ensure the maximum utilization of resources, to get the required and directed work done, and to correct the subordinates whenever they go wrong. Is it clear? नेक्स्ट जो टास्क है, जो नेक्स्ट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का है दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो नेक्स्ट टास्क है, कोऑर्डिनेशन सिंपली मीनिंग मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, कोऑर्डिनेट करना वर्क को, एक दूसरे से जोड़ना वर्क को, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो सपोज किसी यहाँ पे इसी एग्जांपल को कनेक्ट करते हैं। यदि हमने डिसाइड किया हमें 10,000 यूनिट्स सेल करनी है
तो जो आप देखेंगे जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो वर्क करते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रमोशन डिपार्टमेंट, तो वेरियस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट डूइंग दैट वर्क। तो हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उनके वर्क को। सपोज कीजिए मुझे 10,000 यूनिट सेल करने का टारगेट है, तो जो मेरा प्रमोशनल डिपार्टमेंट है, सेल एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, तो मुझे प्रमोशन के मेथड्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, वे इंक्रीज करने पड़ेंगे कि मैं किस तरीके से प्रमोशन करूं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेज करे। यही चीज मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्क को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि वो हमारे को, हम 10,000 यूनिट सेल करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली 10,000 यूनिट्स जितनी यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बेसिकली जो अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क्स है, उन सबके वर्क को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो सेल होगी वो अल्टीमेटली उस बिजनेस की सेल है, और जो प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली उस बिजनेस का प्रॉफिट है। तो जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है उनके वर्क को हमें कोऑर्डिनेट करना है। What is coordination? It is one of the most important function, as it is essential to channelize the activities of various individuals in the organization for achievement of common goal. And what is the common goal of the in the business? That is profit is a common goal. The entrepreneur has to make sure that the work of different segment is going according to the predetermined targets, and corrective measures have to be initialized if there is any deviation. That means यदि कोई variation है तो हम उसी टाइम पे corrective action ले लें. Is it clear? It is the second last function, that is coordination. Now student, we are moving the last managerial function, that is controlling. Controlling का सिंपली मीनिंग है जो एक्चुअल वर्क हुआ है और जो हमने एस्टिमेटेड वर्क था हमारा, हमने चेक करना कि हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यदि हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या रीजंस है, उन रीजंस को सॉल्व करना। ये सब जो भी टास्क जो वर्क होता है वो कंट्रोलिंग के अंडर में होता है। तो बेसिकली कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस which enables the entrepreneur to get her policies implemented and take corrective actions if the performance is not according to the predetermined standards. The process begins. ये कंट्रोलिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कि हमें हो सकता है हम जो प्रोडक्ट बनाए उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी यूनिट्स होनी चाहिए। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने कितनी यूनिट्स बनाई है, क्या क्वालिटी है, वो चेक करना। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना। वेरिएशन, फाइनली टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और यदि कोई वेरिएशन आते हैं, कोई चेंजेस आते हैं, तो हम उसके लिए करेक्टिव एक्शन उसी टाइम पे लेंगे ताकि हमारा जो भी हमने प्लान किया है वो वर्क डिले ना हो, वो वर्क इनकम्प्लीट ना रहे, तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने मैनेजरियल जो 8 मैनेजरियल फंक्शंस है उनके बारे में स्टडी करी है। एंड द शॉर्टकट ऑफ दीज फंक्शन इज POS DL MCC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, motivation, coordination, and the last one is controlling. These are the functions of managerial functions of an entrepreneur. Student, you must prepare your own notes in your notebook and learn all these functions of an entrepreneur. If you have any doubt, then please ask me in live stream classes of entrepreneurship class 11. Okay, student. And in the next video we will learn about the various commercial function of an entrepreneur. Is it clear? Okay, students.